देखिए, I don't think my character was dark and intense at all in Farzi. I think it was just as real as it gets. You know, वो banking से related था, वो वहाँ पे घुसती है और notes के पीछे चली जाती है. यहाँ पे ये सच के पीछे भागती है. I have never been very vocal about my political opinions. And I don't think I want to do that unless I'm sure about making a stance. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, as far as I know, audiences की बहुत एकदम ऐसे दिल से थी इच्छा that they should see her on the big screen और उनकी पूरी करने ये तमन्ना. Right now with me I have Rashi Khanna in conversation with me on India Forums. Hello, Thank you so much. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good. Present at the trailer launch today, I saw the kind of response that people have shown. Were you overwhelmed? How was the feeling? I was overwhelmed, but I was expecting that people will actually like it. क्योंकि वो मेहनत है, वो रंग लाई है. जी, बहुत ही अच्छा ट्रेलर काटा है. फिल्म भी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है. So I'm just excited. I want people to see it. I want them to know what the truth is. I want them to know our history. Yeah, true that. Talking about the Sabarmati Report, Rashi, I want to know ऐसी तरह की जो फिल्म्स होती है काफी कम बनती है आज के टाइम में जो true incidences को दर्शाती है, especially when it has so much sensitive political history to it. तो जब ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती है, कितने थॉट्स देने पड़ते हैं? 1, 2, 3 या फिर what is the process like? देखिए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है. I have never been very vocal about my political opinions. Correct. And I don't think I want to do that unless I'm sure about making a stance. True. Right? तो मैं ज्यादातर इन सब में नहीं घुसती थी. And now I'm doing a film which has a political backdrop. True. But I think people will see what I stand for through the film. We've tried to make it in a very in the most humane way possible because यहाँ आप किसी और एंगल से नहीं but एक human level से देखेंगे कि talks about the 59 bodies that you will see burnt. It's a tribute to them. And जब हम फिल्म शूट कर भी रहे थे तो you know there were moments where we ourselves are heartbroken. And सबसे पहले तो एकता ने ये फिल्म डिसाइड करी प्रोड्यूस करने की तो वहाँ थोड़ी हिम्मत मिली. उसके बाद विक्रांत ने हाँ बोली तो थोड़ी हिम्मत मिली कि अरे विक्रांत कर रहा है तो कुछ क्रेडिबिलिटी होगी. फिर मैंने स्क्रिप्ट देखी और स्क्रिप्ट के साथ साथ हमें रिसर्च मटेरियल मिला था जो उतना ही मोटा था जितना कि हमारी स्क्रिप्ट थी. So we went through all that research material just to be sure because I feel actors also have a social responsibility. Ki, you know, people look up to you. They will listen to what you're saying. Absolutely. So you make sure that your voice is counted. Correct. You know, तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे लेकिन सब clear हो गया once I met the team and once I saw the research and I saw how they've written the characters. तो I hope कि लोग भी वही देखें जिस नीयत से हमने ये फिल्म बनाई. राशि पर जब ऐसा कोई सेंसिटिव मैटर पे आप फिल्म कर रही होती है ना तो घर पे डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशंस क्या होती है? मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही खुश थे कि पहले उनको थोड़ा ये था कि आर यू श्योर. फिर जब मैंने उनको बताया कि यू नो ये स्क्रिप्ट है, हम ऐसे इसको शूट कर रहे हैं, तो दे वर वेरी happy कि you know I'm part of a film which showcases our history or you know which literally has changed the course of our future. True. तो वो खुश हैं. I mean टेबल पे कॉन्वर्सेशंस होती थी, अच्छा क्या हुआ और मैं बोलती थी आप फिल्म देखना आपको पता चलेगा क्या हुआ. तो मतलब मम्मी पापा को भी इन्होंने कुछ नहीं बताया? उनको मैंने डिटेल नहीं दिया, उनको मैंने सिर्फ आउटलाइन दिया. वंडरफुल. टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, राशि का कुछ ऐसे इंसिडेंसेस थे शूटिंग करते वक्त जो आपको अब तक नहीं पता थे बट व्हाइल यू वर डूइंग द रिसर्च फॉर द फिल्म ऑफ कोर्स कुछ चीजें पता चली, कुछ डिस्टर्बिंग लगा? See, there were a lot of things जो मुझे पता चली. अब मैं बहुत इमोशनल सी इंसान हूँ तो मैं ज्यादातर ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज देख नहीं पाती. करेक्ट. तो और अगर हम देखते भी तो हम इग्नोर कर देते. But this is a part of history that you cannot ignore. Even I, when I was younger, I think I was 10 or 12 years old जब ये हुआ था. और मुझे ऑब्वियसली बच्चों को दूर रखा जाता है ऐसी न्यूज से. लेकिन जब मैं बड़ी भी हुई तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, राइट्स हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से हुई. करेक्ट. तो इस फिल्म में हम ये दिखा रहे हैं कि वहाँ शुरुआत कहाँ से हुई जो इतना बड़ा स्केल अप हो गया. उस बारे में मुझे नहीं पता था. बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता थी जो ऑडियंस को भी शायद नहीं पता होगी बिफोर दे यू नो दे विल ओनली नो आफ्टर दे सी द फिल्म. करेक्ट. ऑल्सो इसका ट्रेलर में हम देख पा रहे हैं विक्रांत एंड रिद्धि दोनों है. स्पेशली आई वांट टू आस्क, विक्रांत इज नोन फॉर हिज सिलेक्शन ऑफ रोल्स इन फिल्म्स, है ना? तो उनके साथ व्हेन यू वर्क, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक एंड वन थिंग दैट यू जस्ट लव अबाउट हिम एंड यू वांट टू अडैप्ट इट फॉरएवर? आई थिंक आई लव हाउ ही इज लाइक अ जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं ना कैरेक्टर्स में. या like he's that actor. True. You can just take the shape of any character. True.
तो मैं उनसे वो लेना चाहूंगी, वो पावर है उनकी। एंड आई थिंक ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट एक्टर आई हैव वर्कड विद। एक फिल्म है तलाकों में जो हम शूट कर रहे थे पहले, और उसके बाद साबरमती आई थी हमारे पास, तो दैट फिल्म विल प्रोबब्ली रिलीज नेक्स्ट ईयर। बट आई थिंक उस फिल्म में मुझे पता तो हमेशा से था कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अप क्लोज जब मैंने उनके साथ काम किया तो वो कितनी ऑनेस्टी से, कितने दिल से वो काम करते हैं, मैंने देखा। सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। True. And how was the equation with Riddhi? So Riddhi I had never met before. Yeah. And मैं उनसे सेट पे ही मिली, and she's a senior in the film. Okay. And I look up to her. Correct. और वो कहते हैं ना, अपने आइडल्स से ना मिले आप डिसअपॉइंट होते हैं, वो कैरेक्टर ऐसे लिखे गए हैं। Wow. You know, तो there is a certain equation in the film that you will see with me and Riddhi. वो आप फिल्म देखने के बाद मैं ज्यादा मुझे भी यही कह रहे फिल्म देखने आओ, फिर मैं बात करूंगी। Well, if I'm not wrong, फर्जी also showcased a dark and intense side of you. वैसे ही कुछ कैरेक्टर था आपका। देखिए, I don't think my character was dark and intense at all in फर्जी. I think it was just as real as it gets. You know, वो बैंकिंग से रिलेटेड था, वो वहाँ पे घुसती है और नोट्स के पीछे चली जाती है, यहाँ पे ये सच के पीछे भागती है। हाँ। You know, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई इस फिल्म को शूट करते हुए, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं सच को बाहर लाने के लिए, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। True that. So I have huge respect for them. Well, at the trailer launch, I heard a lot of people asking her questions about यार हर लैंग्वेज में काम कर लेती है, but pro है, करेंगी काम हर लैंग्वेज में। But I want to ask her is there a major difference that you see in both the industries, South and अगर यहाँ बॉलीवुड की बात करें? देखिए, साउथ में भी 4 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत अलग तरह की उनकी वर्किंग्स हैं। You'll see a reflection of their culture in their films. Absolutely. Like Telugu likes larger than life films. You know, Tamil has a mix of both. Malayalam has all kind of different genres. Kannada also, the films that I have been seeing are so real and take you home. Like it's very rooted in their culture. Hindi has the option of exploring all genres. Absolutely. तो I think उनकी reach भी ज़्यादा थी, अब मुझे लगता है South की भी है. So there's not much difference between North and South if you ask me today. There's no major difference like that. No. Well, if there's one thing that you would like to change currently in the industry, in all that I'm talking about, because you've worked like इतने various aspects में, तो क्या ऐसी चीज होगी that Rashi would want to change? I think I would want to do more content. I mean, आ रहा है, अभी भी आ रहा है, but I feel like we can do much better. मैं राइटर नहीं हूँ, तो मैं लिख नहीं पाती, नहीं तो मैं खुद लिख रही होती बैठ के, but you know this, we're constantly wishing for better scripts to be written, better roles to be written, और सेम तरह के किरदार नहीं करना चाहूंगी। तो one thing I would like to actually change is people should be able to make more bold choices in terms of the content they're choosing. और I hope अगर ऐसे राइटर्स हैं तो प्लीज आइए, प्लीज मिलेंगे। टाइमिंग्स बदलना चाहूंगी मैं। थोड़ा हम बहुत ज्यादा लोगों को दूर से लगता है कितना ग्लैमरस है, बट आप घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। आई थिंक वो थोड़ा अगर कम हो जाए तो। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट आवर्स दैट यू हैव वर्कड फॉर? आई थिंक 52 hours, but with a gap of बीच में सोना, that was बट वो भी ज्यादा नहीं मिलता होगा ना, हार्डली कुछ नैप बीच में सोना पड़ता है, गाड़ी में सो जाओ, जाते हुए सो जाओ, that has happened. Yeah, wonderful. वैसे मैंने सुना है कि उड़ती उड़ती खबर मेरे पास आई है that she sings also very well. तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत प्यारा गाना है इस ट्रेलर के पीछे जो हमें सुनाई पड़ता है। If 2 lines we could just listen. Done. इस सॉन्ग के बारे में आपको बताना चाहूंगी, भजन जैसा एक सॉन्ग हमारा जो है, ये क्योंकि सास भी कभी बहू में आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो सीरियल था, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ये था। तो कभी भी क्लाइमैक्स आप देखेंगे तो ये गाना बज रहा है, and it flashes memories in my head, and it's so special because it's being used in this film. तो मैं 2 लाइनें गाऊंगी, मैं ऐसी कोई बहुत महान सिंगर नहीं हूँ, पर मैं गा देती हूँ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। Playback singers, fasten your seat belts. She's coming your way. Last 2 questions before I wrap up, Rashi. अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ OTT में और फिल्म्स दोनों बड़े पर्दे पे, what is that one kind of genre जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है and you're desperately wanting to try it? I think I want to do something historical. मतलब जिसमें you know like वो the मोहनजोदारो टाइप्स, हाँ टाइप, लाइक जो क्वींस होती थी, और वहाँ के you know वहाँ की थॉट प्रोसेसेस क्या थे, वहाँ पे क्या होता था, you know, because मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं उन टाइम्स के बारे में, बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। करेक्ट। तो
something like that. जोधा Yeah. अकबर kind. Yeah, exactly. जी. Well, lastly अभी ट्रेलर लॉन्च में हमने विक्रांत को ये कहते हुए सुना दैट जब आप ऐसी कोई चीज़ें करते हो ना तो काफ़ी सारे रिस्क टॉलरेट करने पड़ते हैं, जैसे थ्रेट्स वगैरह आते हैं. एंड इट डजंट टेक अ लॉन्ग टाइम कि अगर विक्रांत तक कोई थ्रेट आया तो यू बोथ आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म. आपकी तरफ भी कुछ ऐसे आ सकते हैं चीज़ें हैं. जब ऐसे कोई सेंसिटिव मैटर डील करते हो तो इमोशंस रन हाई अक्रॉस द कंट्री. जी. कुछ आए हैं ऐसे थ्रेट्स वगैरह, अगर आएंगे तो हाउ आर यू रेडी टू डील विद दैट? क्या मेंटल स्टेटस है? देखिए, मैंने तो सोचा नहीं है कि क्या होगा अगर थ्रेट्स आएंगे, बिकॉज हमारी नीयत तो बहुत साफ है कि हम सच बाहर लाएंगे एंड इट विल रसल फेदर्स. ट्रू. तो मुझे नहीं पता विक्रांत को आए हैं कि नहीं, बिकॉज आई थिंक वो कह रहा था उसको, बट मोस्टली दे टारगेट हिम मोर देन एनीबडी एल्स. बट जब आप फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है रीजन है कोई थ्रेट देने का. जी. What do you think the audience is going to take back from the Sabarmati report? I think they'll be happy that we've decided to tell this story, because Correct. I'm sure a lot of us are unaware. Correct. And it takes them back in time and makes them see things from a very human perspective than any other perspective. Wonderful. That is all that is in store for her, and thank you for being so Thank you candid so much. about all the answers that Thank you you. answered. Guys, the Sabarmati report 15th November, प्लीज़ भूलिएगा मत, अपने थिएटर्स में जाके देखिएगा. एंड फॉर ऑल योर लव फॉर दीज गाइज, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है. ये ट्रेलर जब भी आएगा ही अगर यूट्यूब पे तो आपको देखने मिलेगा ज़रूर. ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन बाबाजी एंड योगेश केनी, इंडिया फोरम्स मुंबई. Thank you.